Namaskar dear learners, welcome to the MOOC lecture of Pharmacology 2, subject code BP503T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, today my talk is focused on the introduction of serotonin or also known as 5-HT and their receptors. So, let us start with the learning objectives. At the end of this lecture, learners will be able to understand the synthesis, storage, metabolism and the release of the serotonin. They are able to explore the various type of serotonergic receptors, their locations, function, agonist and antagonist, and they are able to analyze the pharmacological of the role of the serotonin. So, let us start with the introduction part. So, chemically serotonin is known as what? 5-hydroxytryptamine. Tryptamine नाम इसलिए पड़ा because it is derived from the tryptophan, amino acid tryptophan. It is discovered into 1948 and सबसे पहले ये एनिमल्स और प्लांट सेल्स में पाया गया. This is also known as the hormone of happiness, ठीक है, because if you have a good level of serotonin, it means you have a good level of happiness in your life. Okay. So, if you eat a diet which having a rich amount of the tryptophan, that means it will increase the synthesis of the tryptamine and that may lead to the happiness. It is a biogenic amine and also act as a neurotransmitter. It is founded into 90s and it is found in enterochromaffin cells which is located into the intestinal cells and 10% it is available in the brain and the platelets. Okay. Generally they are also available in banana, tomato, scorpion sting and the pear. It regulates the mood, sleep, temperature and the pain. So, let us explore the synthetic pathway of the 5-hydroxytryptamine. So, as I told you that it is a derived from the amino acid known as what? L-tryptophan. सही है. तो L-tryptophan जो है it converted into L5-hydroxytryptophan with the help of enzyme tryptophan hydroxylase. ठीक है. Again this hydroxytryptophan is converted into 5-hydroxytryptamine or you can say serotonin by the help of enzyme aromatic L-amino acid decarboxylase. So, please दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि मैंने कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकॉइड्स में कि हिस्टामिन एंड द सेरोटोनिन आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? डीकार्बोक्सिलेटेड अमीनो एसिड्स. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखो तो डीकार्बोक्सिलेशन फिर से हो रहा है किसका? ट्रिप्टोफेन का, और वो डीकार्बोक्सिलेशन होकर क्या बना रहा है आपका? 5-HT और सेरोटोनिन. ठीक है. फिर इसका मेटाबॉलिज्म होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम माओ और मोनोअमीन ऑक्सीडेज विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 5-hydroxyindole acetaldehyde and later on this will converted into the 5-hydroxyindole acetic acid with the help of enzyme aldehyde dehydrogenase. This is a cycle which indicates the role of serotonin in our brain or you can say in our life. So, generally tryptophan is generally found in the various foods such as egg, fish, soybean, cheese, seeds, poultry and मीट. ठीक है. तो यानी कि ट्रिप्टोफेन इज द बिल्डिंग अमीनो एसिड इन अवर बॉडी. ठीक है. एंड इट इज रिच इन और रिचली फाउंड इन द एग, फिश, सोयाबीन, चीज, सीड्स, पोल्ट्री एंड मीट. ओके. सो दिस ट्रिप्टोफेन इज कन्वर्टेड इनटू 5-hydroxytryptophan and later on this will convert into the serotonin. Now, explore the role of what? Serotonin. So, serotonin is effectively control your mood, your cognition level, your sleep pattern and your memory. It means if you are happy, if you have a good level of serotonin, then you have a good mood, you have a
स्मार्ट और इंटेलिजेंट ब्रेन एज वेल एज यू हैव अ गुड स्लीप पैटर्न, ठीक है ना. ओके, नाउ it is metabolized into the N-acetyl serotonin, later on which will form the melatonin. अब what is melatonin? तो melatonin is nothing, it is a you can say substance which controls our biological clock और circadian rhythm, ठीक है. तो हमारे बॉडी में circadian rhythm को कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए? मेलाटोनिन. और मेलाटोनिन आता कहाँ से है? पीनियल ग्लैंड से, ठीक है. तो रिमेंबर, पीनियल ग्लैंड इज द प्लेस विच सिक्रीट्स द what or stores the melatonin. And what is the role of melatonin? It maintains your circadian rhythm. आपका उठने का, खाने का, सोने का जो भी टाइम ड्यूरेशन है, पैटर्न है, उस सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेलाटोनिन कर रहा है. यानी हमारी ब्रेन में एक घड़ी की तरह काम करता है, विच इज नोन एज व्हाट? बायोलॉजिकल क्लॉक. नाउ what is the distribution and the storage of the serotonin, where it is distributed and stored in, ठीक है. तो already I told you 90% of the serotonin is stored into the intestinal cell, specifically what type of cell? Enterochromaffin cells, ठीक है. enterochromaffin cells में सबसे ज़्यादा पाया जाता है mandric plexus, whereas 10% is found in where? Platelets and the brain, ठीक है. Now in platelet it is diffuses in the plasma by the help of active transport, ठीक है. And it is responsible for the platelet aggregation at the site of injury. यानी कि once it stimulates the platelet, कौन? serotonin, ठीक है ना. It will increase the what? platelet aggregation at the site of injury or the trauma, ठीक है. In lungs it is also found, in bone marrow, in pineal gland it is also found, as well as into the CNS as a neurotransmitter it functions, ठीक है. Okay, now explore the 5-HT receptors, ठीक है. So first of all, the scientists Gadam and the Piccarelli in 1957 classified the 5-HT receptors, serotonergic receptors को उन्होंने classify किया, and they classified these receptors on the basis of their blocking capability, ठीक है. यानी कि वो कैसे ब्लॉक कर रहे थे फिनॉक्सीबेंजामिन और मॉर्फिन को, उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर उन्होंने डिफाइन किया, ठीक है. जनरली सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स आर ऑफ 7 टाइप्स, बट प्राइमरली हम इनको 4 क्लासेस में ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मेजर 1, 2, 3, 4 का ही रोल है, ठीक है. और बाकी 5, 6, 7 जो है, इनके रोल्स जो है वो बहुत ही कम और या तो फिर अननोन है, ठीक है. Okay, so start with the 5-HT1 receptor. 5-HT1 receptor have 6 subtypes. It means they are divided into subtypes A, B, C, D. A, B, D, E, F, P. Okay. Now they act through the GPCR pathway. यानी कि ये किस मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहे हैं? GPCR pathway के थ्रू काम कर रहे हैं, यानी G प्रोटीन्स के साथ काम कर रहे हैं, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू काम कर रहे हैं, और ये इनहिबिट करते हैं कैल्शियम चैनल को, ठीक है. यानी कि अब अगर आप सोचो तो किस तरह का यहाँ पर प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, कौन सा जी प्रोटीन इन्वॉल्व होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर GI प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होगा फॉर द एक्शन ऑफ 5-HT1 रिसेप्टर, ठीक है. दे ओपन द पोटेशियम चैनल, और पोटेशियम चैनल जो है वो हाइपरपोलराइजेशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो जनरली 5-HT1 इज फाउंड इन हिप्पोकैम्पस, which is a part of the CNS, cerebral blood vessels, and the ENS. ENS, what is the ENS? ENS is nothing, it is the enteric nervous system. ये वो नर्वस सिस्टम है जो आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है, यानी GIT में पाया जाता है, ठीक है. तो आपके GIT में जो सेटअप पाया जा रहा है, नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? ENS, ठीक है. और स्पेसिफिकली यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर काम कर रहा होता है, कौन सा सब टाइप? 1P, ठीक है, 5-HT1P. ओके. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ H1 मेडिएटेड रिसेप्टर्स? तो ये आपके मूड, बिहेवियर और द सेरेब्रल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं. नाउ अगर हम बात कर ले तो इनका जो मैकेनिज्म है, जो मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया कि क्योंकि ये कैल्शियम इन्फ्लक्स को ब्लॉक कर रहे थे, तो इट में एक्ट बाय द जी इनहिबिटरी प्रोटीन, GI प्रोटीन, ठीक है. और GI प्रोटीन के वजह से CMP का जो लेवल है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, और उसके डिक्रीज होने की वजह से जो पोटेशियम का इन्फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स बंद हो जाएगा, और इसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है. एगोनिस्ट की बात कर लें अगर, तो बुस्पायरॉन एंड सुमाट्रिप्टेन,
These two drugs are the agonist of 5-HT1, ठीक है। अगर हम बात करें तो बुस्पायरॉन जो है वो पार्शियल एगोनिस्ट है, वेयर एज सुमाट्रिप्टेन जो है वो फुल एगोनिस्ट है, ओके। और सुमाट्रिप्टेन जो है वो जनरली स्पेसिफिकली काम करता है रिसेप्टर 1B एंड 1D के ऊपर, ठीक है। 1A का वो पार्शियल एगोनिस्ट है बुस्पायरॉन। एंटागोनिस्ट की अगर हम बात कर लें तो स्पाइपिरॉन जो है दैट इज द एंटागोनिस्ट एंड सेकेंड एंटागोनिस्ट इज अर्गटामिन, ठीक है। तो स्पाइपिरॉन जो है दैट एक्ट्स ऑन द 1A रिसेप्टर, वेयर एज अर्गटामिन इनहिबिट्स 1A, B, D, तीन तरह के रिसेप्टर्स के ऊपर ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें 5-HT2 रिसेप्टर्स की तो जनरली इनको हम सब टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, 2ABC, ओके। तो 2ABC की बात करते हैं तो जनरली दे आर फाउंड इन सेरेब्रल न्यूरॉन्स, दे आर अवेलेबल इन स्मूथ मसल्स एज वेल एज द प्लेटलेट्स, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात कर लें तो फंक्शन में इनका जो मेजर रोल है दैट इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और साथ में ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी स्टिमुलेट करते हैं। तो अगर अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 5-HT2 मेडिएटेड रिस्पॉन्सेज, तो आप कह सकते हो क्या, बाय द GQ प्रोटीन, ठीक है। यानी कि ये IP3 डैक पाथवे के थ्रू काम कर रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। तो GQ पाथवे के थ्रू ये काम करते हैं, यानी कि ये IP3 आइनोसेटेल ट्राइफॉस्फेट को स्टिमुलेट कर देते हैं और DAG जो है वो डाईएसाइल ग्लिसरॉल के लिए है और उसकी वजह से पोटेशियम चैनल जो है वो इनहिबिट हो जाता है और डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स जो होता है वो कम होने लगता है, ठीक है। अगर हम एगोनिस्ट की बात करें कि व्हाट इज द एगोनिस्ट ऑफ 5-HT2 रिसेप्टर, तो अल्फा मिथाइल 5-HT इज द एगोनिस्ट ऑफ ऑल द 3 सबटाइप्स, यानी 5-HT2A, B and C. LSD, which is known as commonly lysergic acid dithalamide, it is also a agonist of 5-HT2 receptor. Antagonist की अगर हम बात करते हैं तो ketanserin, which is specifically block the 2A, methisergide, which have a tendency to block 2A, B, C, all the 3 subtypes, clozapine, reserpidone and cyproheptadine, ठीक है। यानी कि इसके इतने सारे एंटागोनिस्ट हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं एंड दे हैव अ एबिलिटी टू ब्लॉक डिफरेंट सब टाइप्स, ठीक है। जिसमें मेथिसर्जाइड जो है और रिसर्पिडॉन जो है वो तीनों सब टाइप्स को ब्लॉक करता है, वेयर एज केटानसेरिन एंड सिप्रोहेप्टाडिन जो है वो सिर्फ फर्स्ट यानी 2A को ब्लॉक करते हैं। यहाँ पर एक नोट है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5-HT2C जो रिसेप्टर है इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्कुलर एंडोथीलियम एंड एंडोथीलियम पर ये एक रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होता है, क्योंकि जनरली अभी जब हम इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, अगर आप पीछे वाली स्लाइड में देखना चाहो तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन लिख रहा था, ठीक है ना। बट 2C इज द रिसेप्टर विच इंड्यूसेस द वैसोडाइलेशन बाय द हेल्प ऑफ EDRF, एंडोथीलियम रिलैक्सिंग फैक्टर। EDRF का फुल फॉर्म दोबारा से बता रहा हूं मैं, एंडोथीलियम रिलैक्सिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये वैसोडाइलेशन करते हैं एंड ऑल्सो रेगुलेट्स द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्मेशन। 5-HT3 की बात करते हैं तो न्यूरोनल 5-HT3 रिसेप्टर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर रैपिड डिपोलराइजेशन ऑफ नर्व एंडिंग एंड दे ओपन्स द कैटायन चैनल्स, यानी कि ये कैटायन चैनल्स को ओपन करते हैं। अगर हम बात करें कहाँ पाया जाता है तो CNS में ये एरिया पोस्ट्रीमा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एज वेल एज द एंट्रिक नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं तो जनरली क्योंकि हमने अभी बात की कि ये PNS, CNS और ENS तीनों में पाया जा रहा है, तो इसकी वजह से ये नोसिसेप्टिव पेन यानी जो नोसिसेप्शन है उसको स्टिमुलेट करता है। यानी कि नोसिसेप्शन का मतलब आप यहाँ समझ सकते हो व्हाट द इंडक्शन ऑफ द और द सेंसिटाइजेशन ऑफ द नर्व्स, ठीक है ना। तो उसके नर्व्स के सेंसिटाइजेशन की वजह से आपको पेन जो है वो देखने को मिलता है। एंग्जाइटी को स्टिमुलेट करता है ये, एमेसिस यानी वोमिटिंग को स्टिमुलेट करता है। कुछ कंडीशंस में ये ब्रेडिकार्डिया और लो इन ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलता है। अगर हम बात कर लें तो ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि GPCR के थ्रू काम नहीं करता है, ये काम करता है एक डिफरेंट पाथवे के थ्रू विच इज नोन एज व्हाट 5-HT गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है ना। ओके, एगोनिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 2-methyl 5-HT is the agonist of 5-HT3 receptor, whereas ondansetron and garensetron is the antagonist of the what
5-HT3 रिसेप्टर। आप मेरे ख्याल से मार्केट में एक बहुत कॉमन ब्रांड आता है ऑनडेम के नाम से, ठीक है। तो ऑनडेम इज व्हाट? ऑनडेम इज नथिंग, इट इज द ब्रांड नेम ऑफ द ऑन्डेंसेट्रॉन, ठीक है। और इट इज हैव अ वेरी गुड कैपेबिलिटी टू कंट्रोल द इमेसिस, स्पेसिफिकली द ENS एंड द एंटियस स्टिमुलेटेड एमेसिस, यानी वोमिटिंग, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको आपके GIT की वजह से आपको एमेसिस हो रहा है, या फिर आपके ब्रेन में एक सेंटर होता है विच इज़ नोन एज न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ठीक है ना, NTS, तो इसकी वजह से अगर आपको वोमिटिंग हुआ है तो ऑन्डेंसेट्रॉन, गैरेंसेट्रॉन हैव अ कैपेबिलिटी टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर वोमिटिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 5-HT4 से 7 रिसेप्टर्स की। तो ये मैक्सिमम चारों रिसेप्टर्स जो हैं ये पाए जाते हैं CNS, ENS, स्पेसिफिकली ENS में अगर हम बात करें तो म्यूकोसल प्लेक्सस में पाए जाते हैं और स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं। वेयर एज अगर हम इनके CNS में बात करें कि CNS में ये कहाँ पाया जाता है स्पेसिफिकली, तो ये पाया जाता है आपके हिप्पोकैम्पस में। फंक्शन की बात कर लें तो दे हैव एबिलिटी टू एक्साइट द न्यूरॉन्स एंड दे इंक्रीजेज द GI मोटिलिटी, ठीक है। यानी आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, ये GI मोटिलिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यानी GI मोटिलिटी यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा आपको डायरिया या फिर क्रैम्पिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विच जनरली सीन इन द 5-HT4 मीडिएटेड रिस्पॉन्सेस, ठीक है। अगर हम बात कर लें तो GS यानी कि एडेनाइन साइक्लिस पाथवे जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर, ठीक है। और एडेनाइन साइक्लिस पाथवे की वजह से ये CMP के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। यहाँ पर CMP जो है वो बढ़ गया, ठीक है। पोटेशियम का लेवल जो है वो डिक्रीज होने लगा, इसका मतलब है किसका इन्फ्लक्स स्टार्ट हो गया? कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स अगर स्टार्ट हो रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पर पोटेशियम जो है उसका लेवल कम हो जाएगा। एंड ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ दिस the slow depolarization of neurons is seen due to the 5-HT4 और 5, 6 और 7, ठीक है ना। एगोनिस्ट की अगर हम बात कर लें तो स्पेसिफिकली मेटोक्लोप्रामाइड, सिसाप्राइड, मोसाप्राइड एंड टेगोसिरॉड, दीज आर द एगोनिस्ट ऑफ द यू कैन से 5-HT4, ओके। और अगर एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो GR113808, यहाँ इसका कोड नेम है बिकॉज दिस ड्रग इज स्टिल इन द ट्रायल्स, ठीक है। दैट्स वाई वी आर मेंशनिंग द यू कैन से दिस कोड, इसका अभी तक नाम नहीं है बिकॉज जनरली इट इज इन द ट्रायल्स, ठीक है ना। तो एंटागोनिस्ट यहाँ पर क्या है? GR113808, ओके। यहाँ एक नोट है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि द रोल ऑफ द 5-HT567, ठीक है, इज स्टिल अंडर स्टडी, ठीक है। वो अननोन है अभी भी उस पर साइंटिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, दैट्स वाई हम यहाँ मेजरली 5-HT1, 2, 3 और 4 की ही बात की है हमने। 5, 6, 7 जो हैं दे आर स्टिल अंडर द स्टडी फेज और उनके ऊपर अभी भी रिसर्च हो रहा है और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दे आर प्राइमरली फाउंड इन द ब्रेन, ठीक है ना। तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे पास डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द सेरोटोनिन, ठीक है ना। तो सेरोटोनिन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले CNS की बात कर लेते हैं। तो सेरोटोनिन एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन द CNS, इट मीन्स it controls the some neuronal activity in the brain. It activates the mood, behavior, sleep, depression, pain, perception, thermoregulation and also controls the release of different hormone from the pituitary gland, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान रखना, हिस्टामिन BBB को क्रॉस कर रहा था, ठीक है, बट सॉरी एंटीहिस्टामिनिक क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर सेरोटोनर्जिक ड्रग्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। दे डू नॉट क्रॉस द BBB इफ इंजेक्टेड इंट्रावेनस रूट, ठीक है ना। दे रेगुलेट द स्लीप साइकिल बाय द सिंथेसिस ऑफ द प्रिकर्सर विच इज नोन एज व्हाट? मेलाटोनिन, ठीक है ना। मेलाटोनिन के सिंथेसिस की वजह से आपकी जो स्लीप साइकिल है वो रेगुलर रहती है, ठीक है। नाउ what is the role of serotonin on the cardiovascular system? So generally it contracts the vascular smooth muscles, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो जितने भी vascular smooth muscles हैं उनका contraction करता है except some heart muscles and the skeletal muscles, ठीक है। तो कुछ skeletal muscles और heart muscles को छोड़ दिया जाए तो ये उन सबका contraction करता है। skeletal muscles
और हार्ट मसल्स में ये वैसोडाइलेशन और ब्रेडिकार्डिया करता है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है डिक्रीज इन द हार्ट रेट, ठीक है ना, ये डिक्रीज कर देता है हार्ट के रिदम को, ठीक है ना। तो दिस इज द एक्शन ऑफ सेरोटोनिन इन द हार्ट मसल्स एज वेल एज द स्केलेटल मसल्स। 5-HT also induces the platelet aggregation, but here in the CVS they have a weak role, ठीक है ना, इनका जो एक्शन है थोड़ा सा कम है, तो इसलिए ये बहुत they are not a potent aggravator of the platelet aggregation, ठीक है ना। they are important into the vascular diseases, ठीक है, तो उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सेरोटोनिन इन द GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, यानी इट स्टिमुलेट्स द GI मोटिलिटी। ड्यू टू दिस गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। सेरोटोनिनर्जिक रिसेप्टर्स के सेरोटोनिन की अगर हम बात करें तो हिस्टामिन जो था H2 स्पेसिफिक मेडिएटेड, अगर हम बात करें तो वो अल्सर कॉज कर रहा था, वो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था। बट यहाँ पर सेरोटोनिन जो है वो म्यूकस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, और इसकी वजह से सेरोटोनिन इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज ए अल्सर प्रोटेक्टिव, ठीक है, अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। 5-HT4 रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो इट इज ऑल्सो स्टिमुलेट्स द ENS को स्टिमुलेट करने की वजह से it you can say lead to the acetylcholine secretion which may induce prokinetic activity। अगर acetylcholine की अगर हम बात करें तो अगर इंटेस्टाइन के ऊपर या GI ट्रैक्ट के ऊपर क्या एक्टिविटी है, तो इट में स्टिमुलेट द इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है। दैट्स वाई 5-HT4 जो है वो हमारे को डायरिया या क्रैम्पिंग जैसी कंडीशंस में देखने को मिलता है, ठीक है, या वोमिटिंग जैसी कंडीशंस में देखने को मिलता है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ 5-HT, ठीक है, अगर हम बात करें ज़्यादा 5-HT बनने लगा, ज़्यादा सेरोटोनिन बनने लगा, तो दे में कॉज द ट्यूमर ऑफ एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स, ठीक है, एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स की ट्यूमर हो जाएगा, और इसकी वजह से आपको सीवियर डायरिया देखने को मिलेगा, बिकॉज मैंने बता दिया कि दे हैव अ प्रॉपर्टी टू इंक्रीज द प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी, ठीक है, तो प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से सीवियर डायरिया देखने को मिलता है, इन स्पेसिफिकली इन द कंडीशन ऑफ द एंटेरोक्रोमोफिन ट्यूमर, ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एक्शंस ऑन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, तो इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द पेन परसेप्शन, ठीक है, ये पेन परसेप्शन को यानी पेन को स्टिमुलेट करता है। इचिंग देखने को मिलती है बाय द 5-HT3 मेडिएशन, ठीक है। इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, आप अच्छे से याद रखना, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है स्मूथ मसल्स, कहाँ के, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को, ड्यू टू द ACH रिलीज, बट हैव लेस पोटेंट देन हिस्टामिन, यानी ये उतना स्ट्रॉन्ग ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करता है कंपेयर टू द हिस्टामिन। अगर हम बात करें तो it has a history of brief respiratory stimulation or the hyperventilation. It reduces the food intake and causes the anorexia, यानी यहाँ पर एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिली, हिस्टामिन जो था that also induces what, anorexia or the satiety, whereas serotonin is also similar effect, ठीक है। Now moving towards the agonist of the serotonin, तो serotonin doesn't have any clinical application, जैसे हिस्टामिन का कोई एप्लीकेशन नहीं था, बट अगर हम बात करें तो कुछ एगोनिस्ट हैं जो यूज़ किए जाते हैं मार्केट में, बुस्पायरॉन, सुमाट्रिप्टेन, सिसाप्राइड एंड डेक्सफ्लोरामिन, ठीक है, तो हम उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं, उनका क्लिनिकल क्या इम्प्लीकेशन है। तो बुस्पायरॉन इज ए नॉन बेंजोडाइजापिन एनालॉग एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव टू कंट्रोल द एंग्जाइटी, ठीक है, द पीपल हु हैव अ टेंडेंसी टू एंक्सियस इन सम पर्टिकुलर कंडीशंस, ठीक है, तो वहाँ पर बुस्पायरॉन इज अ चॉइस ऑफ ड्रग। इट इज़ अ पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ द 5-HT1A, ठीक है। अब हम बात कर लें अगर तो सुमाट्रिप्टेन इज अ सेलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ 5-HT1D, ठीक है, एंड दे हैव अ वेरी पोटेंशियल रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुमाट्रिप्टेन जो है इट इंड्यूसेस द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पर आपको एक्यूट माइग्रेन की कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओरल बायोअवेलेबिलिटी इज लेस, ठीक है, सुमाट्रिप्टेन की, बट जनरली इट इज यूज्ड एज अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और गिवन बाय द नेजल स्प्रे, ठीक है।
माइग्रेन एक डिजीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माइग्रेन एक कंडीशन है जो हमारे हाफ हेडेडनेस भी कहा जाता है उसको, और थ्रॉबिंग पेन होता है हमारे को, थ्रॉबिंग हेडेक होता है, जिसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर सुमाट्रिप्टेन जो है दैट इज़ हैव अ वेरी गुड कंट्रोल, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।